Okay, we were doing some small topic. We were doing here why I'm come here. I'm come to show you when you worship an idol, what exactly is happening behind the scenes. जब तुम मूर्ति का पूजा करता है उसके पीछे क्या होता है. ड्रामा स्टेज के पीछे भी होता है ना. आगे ही देखते हैं मगर पीछे भी चल रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं वो लोग ये चलने के लिए. सब लाइटिंग बाइटिंग साउंड, वो पीछे क्या होता है वो देखता है बैकग्राउंड में. सो विल सी इन आइजाया 14:12-14. ओके, आइजाया 14:12 विल सी. Isaiah 14:12 says, "How art thou fallen?" Lucifer याचे कोणा? Who knows Lucifer's original name in Hebrew? Lucifer, who is Lucifer? King of the devil. King of the devil म्हणता. आणि devil कोण? He's a pasha. Devil fena. हा? पण म्हाका विचारता who is Lucifer? हा? Who is Lucifer? कोणा खबर ना? Satan. Yeah, the devil. Lucifer's original name is Helael. 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 H-A-Y-L-A-L-E. Helael. Okay. So his original name is Helael. Okay. We'll read. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Next verse 13 he says, "For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. तेरा स्वभाव सुबह के तारे के जैसा था, किंतु तू आकाश के ऊपर से गिर पड़ा. धरती के सभी राष्ट्र पहले तेरे सामने झुका करते थे, किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया है. तू सदा अपने से कहा करता था कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर का सा बनूंगा, मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं जफोन के पवित्र पर्वत पर बैठूंगा, मैं उस छिपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा, मैं बादलों की वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा. एक दिसाचे नखेत्र ते फात्याच्या पुता कसो म्हूण तूं मागा वेलो शेवटून पडलोय तूं राष्ट्रांक तुजे खाल चेपून दवरताय, तर कसो म्हूण तुका धरणीर शेवटून उडयलो. तुज्याच मनान तूं अशें म्हणटालोय, हांव मळबा पर्यंत चडटलो, देवाच्या नखेत्रा परस अदीक उंच म्हजें सिंहासन उबारतलो. उत्तरेंतल्यान सभेच्या पर्वतार हांव बसतलो, कृपा वयर हांव चडून वेतलो, भोव वर्त्या देवाक सारको जातलो. I'll read it in English again. We'll read in Konkani in Hindi. ये बहुत there is lot of depth in this. ये किसके बारे में बोल रहा है? शैतान के बारे में बोल रहा है. अभी मैं I'll read. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Thou art cut down to the ground, which didst weaken the nations. For thou hast said in thine heart. Where he said? He didn't say to God anything. He's saying in his heart, in his mind. He's thinking in his mind, but he doesn't know what he's thinking in his mind is on the screen of God. What you are thinking in your heart, communication of heaven is where? In the mind. All these thoughts, most of the thoughts are external, they are not internal. They are not your thoughts. Now you see, some of y'all will remember all the bad things.
but the good things you will not remember. So how, if you have the same memory, how you are not remembering all the good things people did to you? Why are you remembering only the bad things? Thoughts are coming externally. They are influenced on you. Now if I take you, for example, if I take you and I put you in one place where all evil is going on, the external environment is evil, you also will become evil. But if I take you and put you in an environment where all godly people are there, you'll automatically, your nature will change. Why? What has influenced you? External environment has influenced you. So here what he's saying, he's thinking in his heart. In his heart he's thinking, in his mind. Lucifer didn't tell anybody what is his plan. Lucifer has not told anybody his plan. He's only thinking in his heart. But when he's thinking in his heart, God is already has understood what he's thinking. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the congregation in the sides of the north. Where he is exalting, what he wants to do? What he's saying in his heart? I will ascend into heaven. I will exalt my throne. Throne is what? This is the one of the angels, which is an anointed cherub. We will see later. This is not the topic, so I am not coming. He is anointed. This is one of the angels who is anointed cherub. He is an anointed, means he is appointed for some task. He has some duty, special duty in heaven. Anointed cherub. What he is saying? I will exalt. He has a throne. You cannot exalt yourself if your throne is bound. You have to exalt yourself when your throne is exalted. So now what he is doing is exalting his throne above the stars. Where he wants to exalt his throne? If you see in Revelation, the book of Revelation, there are 7 stars. Before God, he is trying to exalt he is trying to go beyond that. He doesn't have authority beyond. He has only limit. He limited cherub. He wants to go above those stars. So to go above the stars, what he needs to do? Take his throne above them. He has to exalt his office. If his office is exalted, he also will be exalted. Then what he's saying? I will ascend above the heights of the clouds. No, then he's saying, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. If you see any witchcraft doctor, I've heard from witchcraft witches who have come to Christ, witches who have accepted Jesus, who have come, they will tell you when the altar they will make, they will search for north. Anywhere where they are making the altar, they will go to the north. Here you see, he's saying, I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. He wants to sit on the sides of the north. Okay? I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. He cannot be God. So he wants to be like God. Why? What is there with God that is different from us and God? Glory, worship. He wants that worship. Teka jayte muhima. We'll see. First we'll see in Hindi. Slow verse 12 to 14. तेरा स्वभाव सुबह के तारे जैसा था, किंतु तू आकाश के ऊपर से गिर पड़ा। धरती के सभी राष्ट्र अपने पहले तेरे सामने झुका करते थे, किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया है। तू हमेशा अपने से कहा करता था। किसके कहा करता था? अपने से। वो मन में कहा कहता था। वो किसको बोला नहीं, उसका सीक्रेट। किसी एंजल, he didn't tell his angel is what? स्वर्गदूत। वो तारो, इधर तारो बोल रहा है। वो किसी तारों को नहीं बोला उनका सीक्रेट जो उनके मन में था। वो अपने अपने मन में सोच रहा है क्या करने का। तो किधर पैदा होता है अपना पाप? मन में पैदा होता है अपना पाप। पहला अपनो जो कुछ करना है पहला मन में सोचना पड़ता है। ऐसा ही नहीं होता है। आपको पीना है तो पहला मन में चल रहा है वो, बाद में आपको द ड्राइविंग फोर्स देता है। किधर होता है पाप? यहाँ। तो ये अभी मन में ही बोल रहा है, किसको बोला नहीं, सीक्रेट है उसका। बाद में मैं महान परमेश्वर सा बनूंगा। वो क्या महान परमेश्वर जैसा बनूंगा, वो अभी सोच रहा है मन में। मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन सिंहासन स्थापित करूंगा। तुम ऊपर नहीं जा सकता है, सिंहासन नहीं जाता है तो ऊपर।
सिंहासन लेना पड़ता है, अथॉरिटी, उसको बोलते हैं थ्रोन द अथॉरिटी। ये थ्रोन जो है इज ऑल्सो एन ऑल्टर, गॉड इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन, द थ्रोन इज द ऑल्टर ऑफ गॉड। So now what you are doing here, worship, is what I am relating here. When you are making this idol worship, you are actually creating altars, very powerful. Okay, now you see here what he's saying. I will, क्या बोलते हैं, read that again. मैं Throne, throne. मैं सदा अपने से कहा करता नहीं, हूँ, वो तारों को क्या बोला? वो मैं सिंहासन। आकाश के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। हाँ, तो ये तारों था, उनके ऊपर था, उसका रैंकिंग ऊपर था ये तारों का। अभी ये क्या अभी सोच रहे, ये अपने मन में सोच रहे मुझे वो तारों से आगे जाना है, इनके से ऊपर जाना है। अभी क्या करने का, मेरा सिंहासन है वो ऊपर लेना पड़ता है। अभी ये अभी सोच रहा है, कुछ बोला नहीं किसी को। मैं जफोन के पवित्र पर्वत पर बैठूंगा। जफोन, मैं उस छिपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा, मैं बादलों की वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च उत्तम परमेश्वर सा बनूंगा। हाँ, कैसा बनूंगा? सर्वोच्च उत्तम, हाँ, परमेश्वर जैसा बनूंगा। उसको परमेश्वर जैसा बनना था, उसको परमेश्वर नहीं बनना था, परमेश्वर जैसा उसको भी बनना था। क्या होता है परमेश्वर का डिफरेंस? इसको इतना पावर है शैतान को, इधर शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। वो बाद में देखते हैं उसका, he was anointed cherub, he had all timbrel, everything, he was beautiful in the sight of God. What corrupted him? His wisdom. त्याचे चित्त corrupted him and he was kicked out from God. He was देवान ये देवसाराक करूंक ना, तेणे आपले विचार, तेणे चितप, तेणे हे केला की corrupted his mind. That is why he got a kick from God. You can't do what you want to do. और अभी क्या बोल रहे, मुझे परमेश्वर जैसा बनना है। परमेश्वर नहीं बनना है, परमेश्वर जैसा बनना है। उसको लायक है, जो परमेश्वर का स्टाइल उनको लायक है, उनको बनना है वो। तो अभी परमेश्वर को क्या होता है कि महिमा होता है, महिमा। तुम अभी महिमा वो मूर्ति को देता है तो महिमा किधर जाता है? उनको जाता है, न्यूट्रल नहीं है इधर कुछ न्यूट्रल नहीं है ये संसार में। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, उसको महिमा नहीं मिल सकता है। ओके, बराबर है। वो अपने मन में क्या करता है, रिलीजियस सिस्टम, डिसेप्शन। इफ ही कांट गेट यू विथ ट्रूथ, व्हाट ही विल डू, ही विल डिसीव यू। डायरेक्ट नहीं मिलता है तो इनडायरेक्ट लेता है वो। तो अभी क्या बोलता है, ओके ये लोग अभी सुनेगा नहीं, उसको मानना है, भगवान को मानने दे, मूर्ति लेगा उनको। ये मूर्ति भगवान ने क्लियरली बोला, मूर्ति को बनाया तो श्राप आएगा। अभी मूर्ति उनको नहीं चाहता है, भगवान को तुम्हारा महिमा, वो महिमा इसको जा रहा है, वो उसको चाहिए तुम्हारा महिमा। उसको महिमा के लिए ये सब मर रहा था, ये महिमा के लिए सब हो रहा है। इसको लात पड़ा महिमा की वजह से। महिमा उनको नहीं मिल सकता है, महिमा सिर्फ परमेश्वर। आई विल नॉट शेयर माई ग्लोरी विथ अनदर, नीदर माई प्रेज विथ ग्रेवन इमेजेस। ग्लोरी नहीं, ग्लोरी महिमा हमारे, glory he will not share with another. He shared his son, shared power, shared the world, shared everything. He will not share his glory. महिमा, ये अभी शैतान क्या चाहता था, महिमा, वो उनको नहीं मिल सकता। किसी को संसार या in heaven nobody on or on earth can take worship, only God himself. Here he is wanting worship. वाज कोंकणी हे दिसाच्या नखेत्रा, हे भात्याच्या पुता कसो म्हूण मळबावेलो शेवटान पडले तू राष्ट्रांक तुझ्या खाल चेपून दवरला। तो पडलो, तेका फोंड मारलो भायर, तेका कितें फुडें वाजले, कितें फोंड पडलो तेका। कसो म्हूण मळबावेलो शेवटान पडले तू राष्ट्रांक तुझे खाल चेपून दवरताले, तर कसो म्हूण तुका धरणीर शेवटून उडयलो। तुज्याच मनान तू अशें म्हणटाले, खूंय म्हणटालो तो, तुज्याच मनान, आपल्याच मनान म्हणटा। हेणे कोणाक काय सांगूना, सिक्रेट।
दुसरे नकेत्राक तेणे काय सांगू ना. तेणे तेजे इश्टाक बिश्टाक कोणाक सांगू ना. तेणे चित्ता तो मनान. कितें चित्ता तो. तुझ्याच परमेश्वर मनात जैसा बने. हा? तुझ्याच मनात तू अशें म्हणटाले हांव मळबाक पर्यंत चडटलो. देवाच्या नखेत्रा परस अदीक उंच म्हजें सिंहासन उबारतलो. हे रेव्हलेशन बुक. रेव्हलेशन कितें म्हणटा कोंकणी. प्रकाशित वाक्य. हा ते लास्ट बुकान रेव्हलेशन ते कितें म्हणटा. 7 नकेत्र आहा ते देवाचे वयर आहा. ते लागीं देवाच्या लागीं. एका कितें करूंक जाय आसलें. हेजो हे ग्रेड सकल आहा तेका वयर वसोंक जाय आसलें हेंचे फुडें. हा मागीर उत्तरे पेल्यान सभेच्या पर्वतार हांव बसतलो. कृपाक वयर हांव चोडून वेतलो. भोव व्हरत्या देवा सारको जातलो. हा वर त्या देवाक सारको जातलो. भोव तेका व्हरत्या तें जाय. तेका देवा सारकें जावपाक तेका जाय. देव जावंक जायना तेका खबर आहा. तो कोणूच न्हू देवाचे फुडें. तो फकत एक रोसलेलो मनीस आंज. तेका देव भाशेन तेका देव भाशेन जावंक जाय. देव न्हू. देव जावंक जायना तो. तेका खबर आहा. सो आतां कितें जाय तेका महिमा. देव ओनली देवाक महिमा मेवता. हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इधर क्या दिखाना चाहता था. ये महिमा इसको महिमा चाहिए. ये परमेश्वर जैसा बनना है उसको. क्यों. सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलता है. आगे देखते हैं मैथ्यू 4:8. Matthew 4:8-9. I'll read. Again the devil, okay, taketh him up into the exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. मुझे ये the devil took Jesus on the after temptation. 40 days he was tempted in the desert. Yeshua was tempted, and when he was come, the devil took him to an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all the glory of them. And said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. What happened here basically? Eve ate the fruit, gave it to Adam. Adam ate it, they fell. Adam had dominion, now the devil has dominion. Now what he say? All these I will give you. Who gave him? Adam gave him that. Transfer, exchange. Adam disobeyed God, there's an exchange that happened. Now no longer Adam is above, now Adam is below. Now what happens here? He's saying all this I will give you. Only one thing you have to do. Fakat ek. Worship me. Only one thing. Jesus came like a man on earth. So he's testing now Jesus. He's testing Jesus. Jesus, whether he knows that he is the Son of the Most High God. Because Jesus came as a man. Though he is a God, he came as man. So he's testing whether Jesus is really in fellowship with the Father. Even with us, when Christians, the devil doesn't know anything. He tests you to check. He will test whether you know your authority or not. Whether you know who you are in Christ or not. He will give you testing. He doesn't know also. He is testing by what outcome you give him. He knows if you can give him a best shot or you will take his bad shot. So here he is testing. He doesn't know. Okay, we'll read 4:8-2. फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उसका वैभव दिखाया। शैतान ने तब यीशु से कहा, ये सभी
वस्तुएं चीजें मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मुझे आराधना करे। हाँ, आराधना, आराधना। देखो उसको क्या चाहिए, ये आराधना चाहिए, ये महिमा चाहिए उसको। तू गिरो बोल रहा है और मुझे आराधना दे, ये सब देता है। इसको किसने दिया? ये सब यीशुआ ने ही बनाया, मगर अभी टेस्टिंग करा है, बिकॉज यीशुआ इज कम एज द मैन टू टेस्ट हिम वेदर ही नोज हु ही इज। ओके, ये बस। हाँ, मैं पुढे 10 हाँ ना। हाँ, फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, पवित्र शास्त्र यह कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। हाँ, ये अभी न्यू टेस्टमेंट में, मैं ओल्ड टेस्टमेंट किधर से ले रहा है? ये यीशुआ एक ओल्ड टेस्टमेंट का ले रहा है, ड्यूट्रोनॉमी। यू कैन टर्न ऑलरेडी टू अस, ड्यूट्रोनॉमी 6:13 त्या उपरांत देवतारान ताका एका भोळ उंच डोंगरार व्हेलो आनी स्वतरांतल्यो सगळ्यो राजवट्यो आनी त्याच्या दबाजो ताका दाखयली. कोणाक गेलो? येशुआ गेलो देवसारान. ताणें म्हटलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार हा, तेका करशीत नमस्कार जाल्यार. जाय, देवसाराक नमस्कार जाय. तुम्ही त्या मूर्तीक नमस्कार करता, तुम्ही न्यूट्रल ना, तुम्ही येशुआक नमस्कार करिना. बिकॉज देव क्लिअरली म्हणटा नमस्कार कोण नाका मूर्तीक. आता तुम्ही कोणाक कोत्ता? एका कोत्ता तुम्ही नमस्कार, न्यूट्रल ना. देर आर ओनली 2 वर्ल्ड्स, the kingdom of light and kingdom of darkness. So where you are now doing the namaskar, you are doing here. नमस्कार तुम्ही हिंगा करतात मागीर. ताणें म्हटलें, आता तो कितें म्हणटा ऐक, येशुआ म्हणटा, ताणें म्हटलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशीत जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो प्रतिपाद केलो, पळय सर सैताना, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. बरयलेलें आहा. हो आतां कितें हुंय बरयलेलें आहा ओल्ड टेस्टमेंटान. आतां आमी दाखोवया तुका हुंय ते ओल्ड टेस्टमेंटान बरयलेलें आहा. कितें बरयलेलें आहलें? सुरेशबरा, तुज्या देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय. एकल्याचे, तेच्या एकल्याचे सेवा भक्ती करतलो. आता गो टू ड्यूट्रॉनॉमी. He is referring to this scripture. Thou shalt fear the Lord thy God and serve him, and shall swear by his name. Deuteronomy. Okay, thou shalt fear the Lord thy God. Means here fear the Lord is what? Lord is Jehovah Elohim. Okay? The Lord is Jehovah and thy God is Elohim. And serve him, and thou shalt swear by his name. Actually here it is saying swear in Old Testament. But in New Testament, Yeshua says don't swear above anything. यहोवा अपने परमेश्वर का सम्मान करो और केवल उसी की सेवा करो। हाँ, केवल उसी की सेवा करो। ये अभी यहाँ जा रहा है, वो बोल रहा है ना, इट इज रिटन न्यू टेस्टामेंट में, और वो बोल रहा है सिर्फ परमेश्वर का सेवा करो। यहाँ आ रहा है वो बोल रहा है इधर लिखेला है, ये लिखेला है। तू मुझे ये बोल रहा है करने के लिए, ये लिखेला है। किधर लिखेला है? तोरा में लिखेला है। तोरा इन मोसेस इज द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस इन द तोरा। सो यीशुआ क्या बोल रहा है? तोरा में लिखेला है, सिर्फ उसका क्या? उसी का सेवा करो, सेवा करो, उसी का सेवा करो। ओए बस सुरेशबरा, तुमच्या देवाची तुम्ही भेट धरतल्यात, त्याची सेवा करतल्या आणि त्याच्याच नावान शपथ घेतल्या. हाँ, तेकाच सेवा करतले. हिंगा न्हू सेवा, ये सर्व हिम. I will put in Hebrew, it is called Aubad.
One is avbad, meaning it is to be enslaved to him, be bound to him, to do service to him, to worship him. Another word, this is in Hebrew, the different words. So here one of the word is be a worshipper of him, worship him, to only worship him. Now we'll see Deuteronomy, same this, 10:20. Deuteronomy 10:20. Thou shalt fear the Lord thy God, him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. I'll read it again. Thou shalt fear the Lord thy God, him shalt thou serve. This serve is the same thing as worshipper. Be only his worshipper. And to him shalt thou cleave, hold tight, hold close, and swear by his name. Deuteronomy 10:20. Yeah. तुम्हें परमेश्वर अपने यहोवा का सम्मान करना चाहिए और केवल उसी की आराधना करनी चाहिए। हाँ, केवल उसी की आराधना करनी चाहिए। उसको कभी ना छोड़ो। जब तुम वचन दो तो केवल उसके नाम का उपयोग करो। अभी न्यू टेस्टमेंट यीशु said don't swear also. That swearing was in that time in the Old Testament they had this swearing only in his name. And that swearing काय है? You could swear, you could not break that swear. Otherwise you were cursed. God would curse you. Here कितें शपथ कितें कोत्ता आनी नात मागीर पैशे ना तुजे काय ना थिंगा तुजे वाट लागतले आहले पैसा. आमी म्हणटा न्हू देवाचें आनी आतां न्यू टेस्टमेंटान तें सगळें ना तें म्हणूंक जायना. आतां ओल्ड टेस्टमेंट दे इज टू लायक वाव ओके आय डू इट देवाच्या नांवान ओके आय डू इट देवाच्या नांवान म्हणलं म्हणजे करचेच पडटा तांकां ना म्हणूंक जायना करचेच पडटा. आमी कितें हिंगा देवाच्या आनी फोड मारले गेले. परस्परा तुझ्या देवाचे तू भेट धरतलोय ताची सेवा करतलोय तेजी सेवा करतलो. ताकाच चिटकून रावतलोय त्याच्याच नावान तू शपथ घेतलोय. हय आतां सोपत बीन आतां घेवंक जायना देवाच्या नांवान. आतां ते सगळे बंद. ते न्यू टेस्टमेंट ते दुसरे टॉपिक. हे टॉपिक न्हू सो आय एम नॉट ब्रॉड. ओके नाव विल सी इन लूक 4:5. 4:5-8. Okay, I'll read. And the devil, same thing it is. And the devil taking him up into the high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give. This power here is called exousia. Exousia in the Hebrew is basically mostly authority. There are different words: privilege, force, capacity, freedom, magistrate, mastery, superhuman. But the main, it is widely used when you say exousia means authority. Means what is saying? All this authority will I give thee. Why? From where he got the authority? The devil. From where authority? Devil. Devil got the authority when Adam Swift. He was cast out of the garden. He was thrown out of the garden. What he did, there was an exchange of authority. First the man had authority on earth. Now what happened? Adam screwed his authority. So there was a swapping of authority. Now the devil, now he's saying what? And the devil said unto him, all this power, English is power, but the original Hebrew is exousia. All this exousia, all this authority will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. Who delivered? Adam. And to whosoever I give, whosoever I will, I give it. If thou therefore will worship me, all shall be thine. Only you have to do one thing. Son of God. Now he's testing whether he knows he's a son of God. He's testing him. He's saying only one thing you have to do. Worship me. Take a focus, say worship. तेका आराधना कर. आणि कितें करतलो मरे तो? Worship. I'll go further. And the same thing he says,
And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. It's the same, another gospel like this. What he will do? You know the difference between a speed post and normal post? What is the difference? Anybody knows? Speed post और normal post के बाद difference क्या है? क्या फर्क है? हाँ? बहुत लेट आराम से जाएगा। हाँ, नॉर्मल पोस्ट आराम से जाएगा। ये जब आराधना करता है ना देव शैतान को, स्पीड पोस्ट जैसा आएगा, मगर स्पीड पोस्ट जैसा तुम्हारा वार्ड लगेगा बाद में। मगर परमेश्वर तुम रुकेगा, अरे किधर रे, आ रहा ही नहीं, वो नॉर्मल पोस्ट से आ रहा ही नहीं चिट्ठी। मगर जब आएगा ना छप्पर पड़ के आएगा, मगर इसको करेगा ना तो स्पीड पोस्ट जैसा आएगा, वो जल्दी आएगा और वार्ड भी लगेगा जल्दी। हाँ, उसके वो अटैचमेंट है, आएगा जो कुछ चाहिए आएगा, उसका आराधना किया तो, मगर उसके साथ वो अटैचमेंट है, उसको भी वार्ड लगेगा साथ में। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हंसेगा तुम लोग, बाद में रोएगा, मगर फास्ट आएगा, जल्दी आता है उसका माल। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और पल भर में इस सारे संसार के राज्य को उसे दिखाते हुए कहा, शैतान ने उससे कहा, मैं इन राज्यों का सारा वैभव और अधिकार, ये वैभव और अधिकार किधर से मिला? हाँ, आगे जाओ। तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे दिया गया है। हाँ, ये अधिकार किधर से मिला और किसने उसको दिया? ये जब आदम वो फल खाया तो दे स्वैपिंग चेंज हुआ अथॉरिटी। वो शैतान जो अथॉरिटी नहीं था, ये हमको दिया था, ये संसार का अथॉरिटी, वो उसको गया। तो ये बोल रहा है अभी ये सब मैं देगा जो मुझे दिया था, और मैं उसे जिसको चाहूं उसको दे सकता हाँ। हूं। तो यदि तू मेरी आराधना करे और मुझे प्रणाम करे, और ये क्या अभी तुम क्या करते हैं? मूर्ति का पूजा करके स्वैपिंग अथॉरिटी, तुम्हें अथॉरिटी दिया, इधर का अधिकार तुमको दिया है, तुम ये मूर्ति का पूजा करके क्या करता है? स्वैपिंग ऑफ अथॉरिटी। अभी उसको भगवान किया तुमने, अभी तुम उसके नीचे है, ये हो रहा है अभी तुम्हारा मूर्ति का पूजा। स्वैपिंग ऑफ अथॉरिटी इज गोइंग ऑन हियर, अथॉरिटी इज गिवन टू मैन। अभी हम लोग क्या करते हैं? एक के ऊपर अथॉरिटी ले रहा है, हमको दूसरे मनुष्य अथॉरिटी नहीं है, हम पूरा संसार का अथॉरिटी है, अधिकार पूरा संसार का है, दूसरा मनुष्य पे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? उसको नीचे डालना चाहता है, इसको नीचे डालना चाहता है, वो हमको अधिकार नहीं दिया है। ये सब हम सब एक लेवल पे, दूसरे को नहीं नीचे डाल सकता है। मगर ये क्या करता है? अभी पॉलिटिशियन सब लोग, जो पैसे लोग, सब दूसरे को नीचे डालना चाहता है। वो हमको अधिकार नहीं दिया है, संसार का अधिकार दिया है, मगर दूसरे लोगों पे नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं? अभी मूर्ति का पूजा करके स्वैपिंग ऑफ अथॉरिटी, शैतान को दे रहे हैं अथॉरिटी, हम उसके ये गुलाम बन रहे हैं। सो अगर तू मेरी आराधना करे तो वो सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है। हाँ, पवित्र शास्त्र में वो लिखा, वो जो मैंने दिखाया वो अभी दे रहा है, क्या लिखेला है बोल रहे। तुझे बस परमेश्वर, अपने प्रभु परमेश्वर ही की आराधना करनी चाहिए, तुझे केवल उसी की सेवा करनी चाहिए। अभी तुम लोगों को बोला था शैतान का आराधना करो, तुम लोग जाते थे? नहीं जाते थे। तो अभी क्या करते हैं? वो थोड़ा घुमाता है तुमको, क्या करो? अरे मूर्ति का करो, ये यीशु है, मूर्ति का पूजा करो, यही है तुम्हारा भगवान। तुम लोग क्या करता है? जो कुछ पूजा, मगर वो पूजा का आराधना किधर जा रहा है? उसको महिमा मिल रहा है, आराधना उसको आ रहा है। अभी तुम उसका गुलाम हो गया। अधिकार आपको दिया था, अभी अधिकार उसको गया है। अभी तुम लोग किसको प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान को। वो मूर्ति को प्रार्थना कर रहे हो, सोचता है तुम लोग भगवान को। कौन भगवान अभी ले रहा है? वो शैतान ले रहा है अभी सब आराधना तुम्हारा। मागीर देवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर संवसारांतली सगळी राज्यां ताका दाखोवन म्हटले, ह्या सगळ्यांचे पदवी आनी त्याची महिमा हांव तुका दितलो, कित्याक म्हज्या स्वाधीन केल्ले हे केल्ले आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका
हांव ते दिता. आता तेका हे पोतून वाचते ते पोतून वाच स्टार्ट वचून ना तेच लाईन ते बस ह्या सगळ्यांचेर पदवी आनी त्याची महिमा हांव तुका दितलो. हा तेका पदवी आणि महिमा हुंच्यान मेवला. फुडें फुडें वाच. कित्याक म्हजे स्वाधीन हे केल्ले आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका. हा तो आता तेका महिमा आणि ते आणि कितें मेवलें तेका उससे मुझको दिया गया है. कितें दिला म्हाका तेका मेळ्ळी आसा. देवसारा अधिकार आणि महिमा कितें दिला तेका महिमा आनी हांव तुका दितलो. ना फुडें फाटी वाच. म्हटले ह्या सगळ्यांचेर पदवी आनी हा पदवी आणि महिमा हे पदवी हे सेइंग पावर हे पदवी न्हू हे अथॉरिटी अधिकार अधिकार ते कोणें दिला तेका अधिकार हे एडमान ते फॉल आयला आणि आता कितें जालें अधिकार चेंज जाला. आता मूर्तीचे पुजा तुम्ही करता अधिकार चेंज जाता. अधिकार ते- तू वयर आसपाचो ना हय अधिकार तुझे चेंज जाता. मीन्स you are supposed to be at the level where God has called you. Now you are worshipping the devil. So he is having authority over you. So now you are crying to God to answer your prayer. हांव त्रासाना देव पाव पूण तुजे अधिकार तुवें सोडला आनी तूं कोणाक महिमा करता तूं तेका देवसाराक महिमा दिता. आतां कळ्ळें तुजे प्रे आन्सर जातले. Authorities exousia. See, I don't know if that fellow is gone, but to जाल्यार जाणा आहलो मातसो. I'm using Esod. Esod is a Strong's edition. Strong's edition has its Greek and Hebrew words. So Hebrew of, this is Greek. And Greek, New Testament means Yeah, Greek. Greek. Exousia. So what? What, bro? ह्या सगळ्यांचेर पदवी आनी त्याची महिमा हांव तुका दितलो. कित्याक म्हजे स्वाधीन हे केल्ले आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव ते दिता. म्हणटच म्हज्या पांयां पडून तूं म्हाका नमस्कार तो करशीत आता कितें जाल्यार म्हणटा म्हज्या पांयान पडून म्हाका नमस्कार कर तितलेंच. आनी कितें हे सगळे तुजे जातले. मागीर आनी तुमी तेच कोत्ता नमस्कार कोत्ता पांयां पडोन थिंगा. तेन्ना जेजून प्रतिभा करून तांकां म्हटले पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. पवित्र पुस्तकां होले बरयले आमी आतां पोन्ने कोरांत वचोन हांवें तुका दाखयलां खूंय बरयलां ते ड्युट्रॉनॉमीन. आतां कितें बरयलां तुझ्या सरेस्पराक देवाक तूं भोगतलोय आनी त्याची एकल्याची सेवा करतलो. तेजे एकल्याची सेवा. आनी हांवें तुका डेफिनेशन हिब्रूचे डेफिनेशन सेवा इज वन ऑफ द सर्व मिनींग सर्व इज वन ऑफ द बी अ वर्शिपर ऑफ गॉड अलोन, गॉड द फादर अलोन. So now we'll see in 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Okay, I'll read. In now अबे आता ऐक हा. In whom आता म्हणता पळय ऐक. He's calling God ना. In whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not, lest the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. I will read again. In whom the God of this world, who is the God of this world is referring? He is referring to the devil, the God of the world. Hath blinded the minds. थोडे जाणांक तू कितें उलय, कितें सांग तू देवाचे, आपले धर्माचे, it is like hooked. The religious system is hooked. Now he's saying, whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not. Lest, why? Lest the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Now what he's doing, he's veiling your minds. He's blinding your mind. So if I blind your mind, so now what I am doing here with the word of God, I am breaking. The word of God is a hammer that breaketh the stones in pieces. The word of God, I am preaching the word. Why? The word of God is breaking that stronghold, that veil that is blinding your mind. Now I am with the word of God saying, no, this is the truth, not your religious system. This is the truth. The word of God, in whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not. Why? Lest the glorious gospel
of Christ, who is the image of God, should shine unto them. इस युग के स्वामी शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को हाँ। अंधा कर दिया है। वापस पढ़ो। इस युग के स्वामी ने, हाँ, इस युग के स्वामी ने, शैतान। वो स्वामी कौन है? वो शिंगा वाला स्वामी है। अभी क्या किया उसने? अविश्वासी अविश्वासी को जो ये प्रचार नहीं ले रहे ना मन में, वो क्या विश्वासी? अविश्वासी की बुद्धि को अंधा कर दिया हाँ, है। क्या करना है आपको? बंद कुछ भी करना है तो क्या करना है? अपने बुद्धि को बंद करना है, सब बंद हो जाएगा। ये लोग ये अभी शैतान क्या करे? अपने बुद्धि को पकड़ रहा है। बिकॉज दिस वर्ड ऑफ गॉड इज एज अ पार्ट टू डिलीवर। ओके, ताकि वे परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप मसीह यीशु मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश को न देख पाए। Corinthians 4:4 म्हणजे ख्रिस्त खरेपणी देवाचो उपकार तरी त्याच्या महिमे बरीच शुभवर्तमानाचो पडझड अनुभवाच्या पाकोना जावन या युगाच्या देवाक ताची मना कुड्डी केल्यात हा, मन्या कितें केला? मना कुड्डी केल्यात कुड्डी केला। ते मन ना कुड्डी, तुका फकत मन तुझे बंद करूंक जाय जालो। तू मागीर कितें सांगता कांय तुका कळचें ना, तेका लागून तुमकां सांगलां कोल्ले धर्माचे तुम्ही फकत आयका। तुमचे आयका म्हणजे कितें? बसोंक जाता हिंगा, तुमचे मन आनी हुंय हा, फायदो कितें? कांय ना फायदो। तेका लागून म्हणल्यार तुमचे मन ओपन दर, बसोन फायदो ना हिंगा सगळे बसतात आनी कितें हुंय आसतात ते मेन इज ब्लाइंडिंग ऑफ माइंड। वर्ड ऑफ गॉड इज द एंट्रन्स ऑफ द वर्ड गिवथ लाइट, इट गिवथ अंडरस्टँडिंग अनटू द सिंपल। कोण म्हणटा आपण बुद्धूक ते बुद्धूक हे बुद्धूक दिलेले आहा, बुद्धूक दिलेले आहा। सो फकत तुम्ही हे म्हणजे ख्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार तरी त्याच्या महिमे बरीच शुभवर्तमानाचो पडझड अनुभवाच्या फाकोना जावंक या युगाच्या देवान त्यांची मना कुड्डी केल्या। हा, त्यांची मना कुड्डी केल्यात। So we'll read another last one. 1 John 5:19. I'll read. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Means the whole world lieth in evil. What is saying here? And we know that we are of God, and the whole world, nothing in this world will tell you the truth. No magazine, nothing will tell you the truth. No news channel, nothing will tell you the truth. Everything is a lie. Everything. From movies to everything is a lie. This I have come, I should only listen. I understood this later. Everything from news to everything is a setup. Nothing in this world is the truth. So don't wait in this world for people to tell you the truth. Okay, read. 1 John 5:19. वह हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, फिर भी यह समूचा सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, फिर भी यह संपूर्ण संसार उस दुष्ट के वश में है। आम्ही देवाची आणि आख्यो संसार नष्टांच्या ताब्यात आसा हे जाणाव। सारखे पोतून वाच. आम्ही देवाची आणि आख्खे संसार नष्टांच्या ताब्यात आसा हे जाणाव। आख्खे संसार. You can't trust the world. Don't trust your religious doctrine. Go by the word. Now you may say, yeah, word, yeah, huicha nela. Let me tell you the first 5 books, Torah, the Jews worshipped from when they were reading. It is not today's, yesterday's.
If you think your religious system, Roman Catholicism, is now in the new covenant after Yeshua came into the picture. These Torah was 2000 years before Yeshua came. This was dealt with, read, the laws of Moses. We'll see that later. So anyway, I'll stop here.